Good morning, children, and welcome to our today's English class. And today we are going to read our English chapter number 3. The oldest is the wisest. So, children, let us start reading. A certain forest in India was full of banyan trees, which provided shade and shelter for a number of birds, animals, and other living creatures. Means in India there was a forest, name was not mentioned. In India there was a forest that was full of banyan trees, and those trees provided, provided means gave, and those trees gave shade and shelter to a large number of birds, animals, and other creatures. An elephant, a monkey, and a partridge, partridge means a small brown bird who has a round neck and a small tail, and people used to hunt this bird for the sport and food. And in Hindi the meaning of this bird is teetar. Partridge means teetar. Lived near means in that forest there also lived an elephant, a monkey, and a partridge. They were good friends for a very long time, and all three of them means elephant, monkey, and partridge were very good friends for a very long time. Then one day something happened and they started quarreling. QUARRELLING means quarreling, and the meaning of quarreling means fighting among themselves. Now children, three of them were very good friends for a very long time. Then one day what happened? One day they started fighting among themselves, and this went on for several, several means many, and that fighting continued for many weeks and made them all very unhappy. And that fighting made them all means that fighting made sad to elephant, monkey, and partridge. So children, in the first paragraph what is told, क्या बताया गया आपको फर्स्ट पैराग्राफ में कि there was a forest in India, कि इंडिया में एक फॉरेस्ट था which was filled full of banyan trees, जो किससे भरा होता है? banyan means बरगद, जो बरगद के पेड़ों से भरा हुआ था. उसी जंगल में उन्हीं में से एक बरगद के पेड़ में कौन रहते थे? an elephant, a monkey, and a partridge. They were very good friends, और तीनों ही क्या थे? एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. But one day, पर एक दिन क्या हुआ? They started quarreling with among themselves. एक दिन उन्होंने आपस में ही एक दूसरे से क्या करना शुरू कर दिया? फाइटिंग करनी शुरू कर दी. And this fighting continued for many weeks, which make them unhappy. Unhappy means sad. और उनकी आपस की फाइटिंग जो है कई हफ्तों तक चलती रही, जिसकी वजह से तीनों कौन? एन एलिफेंट, अ मंकी, एंड अ पार्ट्रिज, तीनों क्या हो गए? उदास रहने लगे. नाउ व्हाट हैपन? इट इज़ अ पिटी, सेड द एलिफेंट. एलिफेंट ने कहा कितने दुख की बात है. पिटी मीन्स कितने दुख की बात है. दैट we don't live peacefully, PEACEFULLY means peacefully मतलब शांति से रहना, प्यार से रहना, मिलजुल कर रहना. together as before,
नाउ व्हाट द एलिफेंट सेड, एलिफेंट ने एक दिन क्या कहा कि इट इज़ वेरी सैड दैट वी डोंट लिव टुगेदर एज बिफोर, कि कितने दुख की बात है कि हम अब इकट्ठा प्यार से एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं जैसा कि पहले रहते थे। Why can't we be the good friends once again? said the monkey. अब मंकी ने क्या कहा कि Why can't we be the good friends? हम एक बार फिर से अच्छे दोस्त क्यों नहीं बन जाते हैं? Yes, said the partridge. तो partridge ने क्या कहा कि Yes, why can't we get back the good old days when we were all so happy? अब partridge यानी तीतर ने क्या कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाई कांट वी बी फ्रेंड्स लाइक आर गुड ओल्ड डेज, हमारे अच्छे पुराने दिनों की तरह हम एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा क्या रहते थे, खुश रहते थे। द एलिफेंट थॉट, THOUGHT मीन्स थॉट, थॉट मीन्स सोचना, ओवर द MATTER मैटर, मैटर मीन्स पूरी बात के ऊपर सोचना, एंड रिमार्क्ड REMARKED रिमार्क्ड, रिमार्क्ड मीन्स बताना, दैट देयर वॉज ओनली वन वे ऑफ ब्रिंगिंग बैक पीस इन द फॉरेस्ट। अब एलिफेंट ने सोचा और कहा कि एक ही रास्ता है दोबारा से जंगल में पीस मतलब शांति लाने का। सिंस एज ब्रिंग्स विजडम, ही सेड मीन्स एलिफेंट ने क्या कहा कि सिंस एज ब्रिंग्स विजडम, क्योंकि जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है तो हमारी विजडम मीन्स इंटेलिजेंस, हमारी हम उतने ही ज़्यादा समझदार होते जाते हैं। द ओल्डेस्ट अमंग अस शुड रूल ओवर द अदर टू। अब एलिफेंट ने क्या कहा कि द ओल्डेस्ट अमंग अस, कि हम तीनों में से जो भी, ओल्डेस्ट मीन्स जो भी हम तीनों में से एज में सबसे बड़ा है, शुड रूल ओवर द अदर टू, वही बाकी के दो जनों पर क्या करेगा, राज करेगा। एन एक्सीलेंट आइडिया इंडीड सेड द मंकी, एक्सीलेंट EXCELLENT, एक्सीलेंट, एंड एक्सीलेंट मीन्स ब्रिलियंट। तो मंकी ने क्या कहा, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है। अब वो हैरान हुआ, दैट इज़ वाई द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज पुट हेयर। बट हाउ कैन वी फाइंड आउट विच वन ऑफ अस इज़ द ओल्डेस्ट। पर मंकी ने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि हम तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, कौन सबसे ज़्यादा एज में बड़ा है। सो द चिल्ड्रन, व्हाट वी स्टडीड फ्रॉम दिस पेज, इस पेज की रीडिंग करने के बाद हमें क्या पता चला कि एन एलिफेंट, अ मंकी एंड पार्ट्रिज वर द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, कि तीनों जो थे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एंड ऑल थ्री ऑफ देम वर फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और तीनों ही बहुत लंबे समय से एक दूसरे के क्या थे, फ्रेंड्स थे। बट दे स्टार्टेड क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, पर तीनों ने एक दूसरे से क्या करना शुरू कर दिया, फाइटिंग, लड़ना शुरू कर दिया। विच कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स, जो कि उनकी ये क्वारलिंग, उनकी ये फाइटिंग जो थी वो कई हफ्तों तक चलती रही। विच मेक्स देम अनहैप्पी, जिसने उनको तीनों को क्या कर दिया, सैड कर दिया। फिर एलिफेंट ने एक आइडिया दिया कि द ओल्डेस्ट अमंगस्ट दैम शुड रूल ओवर द टू, कि हम तीनों में से जो भी ओल्ड होगा, एज में बड़ा होगा, वही राज करेगा बाकी के दो जनों पर। एंड वाई एलिफेंट डिसाइडेड दिस, और एलिफेंट ने ऐसा क्यों सोचा, बिकॉज ही बिलीव्ड, क्योंकि उसका मानना था कि एज ब्रिंग्स विजडम, कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती रहती है वो समझदार होता रहता है, इंटेलिजेंट होता रहता है। दैट इज़ वाई ही सेड द ओल्डेस्ट अमंग अस शुड रूल ओवर द टू, कि हम तीनों में से जो भी एज में बड़ा होगा वही बाकी के दो जनों पर राज करेगा। तो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस पेज नंबर 1। तो हमारी इस पेज की समरी में हमने यही अभी तक पढ़ा। लेट अस कंटिन्यू आवर रीडिंग, और देखते हैं
कि विच 3 ऑफ देम इज द वाइजर ओल्डेस्ट, कि तीनों में से कौन ओल्डेस्ट था। चिल्ड्रन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द banyan ट्री, बरगद का पेड़, which gave shelter to a large number of birds, animals and other creatures. And this is an elephant, a monkey, and this is the picture of the partridge. यानी ये किसकी तस्वीर है? partridge. partridge means तीतर की पिक्चर है. So all three of them were very good friends for a long time, but now they started fighting with each other. That is why they three of them were very unhappy, and one day they decided to that whosoever is the oldest among them should rule over the two. Let us continue our reading. That is very simple, answered the partridge. Answered means ANSWERED. Answered. Answered means replied. अब partridge ने क्या रिप्लाई, क्या आंसर दिया कि that's very simple, ये तो बहुत आसान है ढूंढना. All the three of us have lived for a very long time near this banyan tree. अब पार्ट्रिज को बोलता है कि ये आसान क्यों है ढूंढना, पता लगाना कि हम तीनों में से कौन ओल्डेस्ट है, कौन सबसे बड़ा है. उसने कहा कि all three of us have been in this forest for a very long time, कि हम तीनों ही जो है इस फॉरेस्ट में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं. The banyan tree, as we all know, have become here for years and years. और हम तीनों को ही पता है कि banyan tree, ये जो बरगद का पेड़ है, इस जंगल में कई सालों साल पुराना है और बहुत पहले से है. Let each of us tell how large the tree was when he was a little baby. तो पार्ट्रिज क्या कहता है कि let each of us tell, चलो हम तीनों एक एक करके बताते हैं कि how large the tree was, कि when he was a little baby, हम तीनों ही जब छोटे छोटे बेबी थे तब ये ट्री कितना बड़ा था. हम तीनों ही एक एक करके बताएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है हम तीनों में से. The elephant and the monkey accepted, ACCEPTED, accepted. Accepted means granted, मान लेना. This suggestion. तो एलिफेंट और मंकी ने जो है वो पार्ट्रिज यानी तीतर का कहना जो है वो, उस तीतर का जो सजेशन सुझाव था उसको मान लिया कि हाँ yes you are right, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. and the former was asked to tell his story first, और former means जो पहले थे, और कहा गया कि तुम सबसे पहले, एलिफेंट को कहा गया कि you start first, सबसे पहले तुम शुरू करो कि जब तुम लिटिल बेबी थे तो how large was the banyan tree, तो banyan tree कितना लार्ज था. तो एलिफेंट ने क्या कहना शुरू किया, when I was a little baby began the elephant. एलिफेंट ने कहा कि when I was a little baby, जब मैं एक बहुत छोटा बेबी था, I could step over the banyan tree, मैं banyan tree के ऊपर चढ़ पाता था, चढ़ने लायक हो गया था. By being very careful, I avoided, AVOID, avoid, and if we add ED then the word becomes avoided, touching even its highest branches. अब एलिफेंट बोलता है कि when I was very little, जब मैं बहुत छोटा था, I could step over the banyan tree, मैं banyan tree पर चढ़ सकता था. But being very careful, पर मैं अपना ध्यान रखने की वजह से कभी भी banyan tree के ऊपर
बैनियन ट्री की जो हाईएस्ट सबसे ऊपर वाली ब्रांचेस थी कभी भी मैंने उनको टच करने की कोशिश नहीं की। दिस शोज, इससे पता चलता है दैट आई हैव नोन द ट्री फ्रॉम द इट्स यूथ। तो एलिफेंट बोलता है कि इससे पता चलता है कि मैं इस ट्री को कब से जानता हूँ, फ्रॉम इट्स यूथ। यूथ मीन्स यंग, जब से ट्री यंग हुआ, जवान हुआ, बड़ा हुआ, मैं इस ट्री को तब से जानता हूँ। द मंकी स्पोक नेक्स्ट, फिर उसके बाद किसकी टर्न आई, मंकी की। एंड व्हाट द मंकी सेड, आई कुड स्टेप ओवर द ब्रांचेस ओवर द बैनियन ट्री। अब मंकी ने क्या कहा कि आई कुड स्टेप ओवर द बैनियन ट्री, मैं बैनियन ट्री के ऊपर चढ़ सकता था, मैं भी बैनियन ट्री के ऊपर चढ़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग अ लिटल बेबी, जब मैं एक छोटा बेबी था। द मंकी स्पोक नेक्स्ट, मंकी ने क्या कहा, बाय स्ट्रेचिंग, STRETCHING, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मीन्स एक्सटेंडिंग, मतलब फैलाना या बढ़ाना किसी चीज़ को। तो बाय स्ट्रेचिंग माई नेक जस्ट अ लिटल एज अ बेबी, जब मैं बहुत छोटा बेबी था तो मैं अपनी गर्दन को क्या कर सकता था, स्ट्रेच, घुमा सकता था, आगे पीछे फैला सकता था। ही सेड आई कुड ईट द लीव्स ऑन द टॉप मोस्ट ट्विग ऑफ द बैनियन ट्री, मैं बैनियन ट्री की जो सबसे ऊपर वाली ब्रांच थी उसके लीव्स खा सकता था। दिस शोज, इससे क्या पता चलता है, दैट I have known the tree from its infancy, IN fan, infan and CYC. So the word becomes infancy. Infancy means young baby. तो मंकी क्या कहता है कि इससे पता चलता है कि मैं इस बैनियन ट्री को तब से जानता हूँ जब से ये अपने बचपन में था। अब एलिफेंट ने क्या कहा कि आई नो दिस ट्री व्हेन इट वॉज यंग, मैं इस ट्री को तब से जानता हूँ जब से ट्री क्या था, यंग था। एलिफेंट ने क्या कहा, आई नो दिस ट्री व्हेन इट वॉज अ वेरी लिटल बेबी, जब ये अपने बचपन में था, एक बेबी था, मैं इसको तब से जानता हूँ। लास्ट ऑफ ऑल स्पोक द पार्ट्रिज। अब लास्ट में किसकी टर्न आई बोलने की, पार्ट्रिज की, यानी तीतर की टर्न आई। एंड व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा, आई रिमेंबर मीन्स रिकॉल करना, याद करना। आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज वेरी यंग, उसने कहा कि मुझे याद है कि जब मैं यंग था, बड़ा था, माई मदर टुक मी टू द माउंटेन्स, मेरी मदर जो है वो मुझे कहाँ ले गई, माउंटेन्स, पहाड़ों पर ले गई। फ्रॉम देयर वी ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, फ्रॉम देयर वी ब्रॉट होम सम सीड्स, और वहाँ उन पहाड़ों से हम क्या लेके आए, कुछ सीड्स यानी बीज लेके आए। आई प्लांटेड, PLANTED, प्लांटेड वन ऑफ द सीड्स हेयर, और मैंने जो है उन बीजों में से एक बीज को यहाँ पर क्या कर दिया, प्लांटेड यानी जर्मिनेट, उसको उगा दिया। एंड द बैनियन ट्री ग्रू फ्रॉम इट, और उस बीज में से क्या निकला, बैनियन ट्री। देयरफॉर, इसलिए, यू विल अग्री दैट आई हैव नोन द ट्री फ्रॉम इट्स वेरी बर्थ, इसलिए तुम तीनों ही मेरी इस बात से सहमत होंगे। अग्री मतलब एक्सेप्ट करोगे, मेरी इस बात को मानोगे कि मैं इस बैनियन ट्री को तब से जानता हूँ, इसके पैदा होने के समय से इसको जानता हूँ। क्यों, क्योंकि उसको पैदा भी किसने किया था, उसको पार्ट्रिज, तीतर नहीं कह रहा, क्योंकि तीतर अपनी मदर के साथ माउंटेन से बीज लाया और उन बीजों में से उसने एक बीज को यहाँ दबा दिया, उसको जर्मिनेट, उसको प्लांटेड किया, और उस बीज में से क्या निकला, ये बैनियन ट्री। तो पार्ट्रिज उस टाइम
बेबी नहीं था, बड़ा था। इसलिए पार्टरिज कहता है कि मैं इस बैनियन ट्री को इसके बर्थ से ही जानता हूँ, जब से ये पैदा हुआ है, क्योंकि बीज मैंने ही डाला था, इसलिए जब से ये पैदा हुआ है मैं इस बैनियन ट्री को तब से जानता हूँ। सो चिल्ड्रन, इन दिस पेज व्हाट वी लर्नड, हमने क्या पढ़ा इस पेज में कि द पार्टरिज वॉज द ओल्डेस्ट अमंग देम, कि उन तीनों में से सबसे ओल्डेस्ट, सबसे एज में बड़ा कौन था? पार्टरिज, क्योंकि उसी ने अपने हाथों से उस पेड़ को उगाया था। द पार्टरिज रिकॉल्ड, पार्टरिज ने क्या रिकॉल किया? दैट हिज मदर हैड ब्रॉट सीड्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड द बैनियन ट्री ग्रू फ्रॉम इट, कि उसकी मदर और वो जो है वो माउंटेन से बीज लेके आए थे, एंड दे ग्रू एंड बैनियन ट्री ग्रू फ्रॉम इट, और बैनियन ट्री उन्हीं बीजों में से पैदा हुआ है। He had seen it from a seedling to a full grown tree, तो पार्टरिज ने क्या कहा कि उसने उस पेड़ को सीडलिंग मतलब एक बेबी प्लांट से लेकर एक फुल ग्रोन ट्री, बेबी प्लांट से लेकर पूरा पेड़ बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। The elephant and the monkey listened to the partridge's story with great respect. अब एलिफेंट और मंकी जो पार्टरिज की स्टोरी को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से और पूरी रिस्पेक्ट के साथ सुन रहे थे। When he had finished speaking, जब पार्टरिज ने बोलना बंद कर दिया, the elephant said, एलिफेंट ने क्या कहा? You are certainly the oldest friend Partridge and you shall रूल ओवर बोथ ऑफ अस। अब एलिफेंट ने क्या कहा जब उसकी स्टोरी ख़त्म हो गई कि यू आर द ओल्डेस्ट अमंग अस, कि तुम ही हम तीनों में सबसे बड़े हो, एंड यू शुड रूल ओवर बोथ ऑफ अस, और तुम्हें ही हमारे ऊपर क्या करना चाहिए? राज करना चाहिए, और हम दोनों को तुम्हारा कहना मानना चाहिए। यस क्राइड द मंकी, मंकी ने क्या कहा? यस, हाँ। वी एक्सेप्ट यू एज आर लॉर्ड एंड मास्टर, LORD, लॉर्ड। तो मंकी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो एलिफेंट, हम जो है पार्टरिज को अपना मास्टर, अपना मालिक मानते हैं। बट द पार्टरिज हु वॉज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो वाइज, पर पार्टरिज जो था वो सिर्फ ओल्ड ही नहीं था, बूढ़ा ही नहीं था, उम्र में सबसे बड़ा ही नहीं था, बट ऑल्सो वाइज, पर इंटेलिजेंट भी था। इसलिए उसने क्या कहा? नो, ऑल द थ्री ऑफ अस मस्ट रूल टुगेदर, हम तीनों ही इकट्ठे एक साथ राज करेंगे। लेट अस ऑल हेल्प टू मेक सम सिंपल लॉज फॉर आर सेल्व्स, आओ हम तीनों ही अपने लिए कुछ नियम कानून बनाएं, लॉज मतलब कानून बनाएं। एंड आई एज द ओल्डेस्ट विल सी दैट दे आर ओबेड, और मैं उम्र में सबसे बड़ा, एज में सबसे बड़ा होने के कारण ये देखूँगा कि जो लॉज हम तीनों ने बनाए हैं अपने लिए, जो नियम हमने अपने तीनों के लिए बनाए हैं, वो ओबेड, हम उन तीनों को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दे सैट डाउन इन द कूल शेड ऑफ द बैनियन ट्री एंड मेड द लॉज, अब तीनों जो है उस बैनियन ट्री की शेड मतलब छाया, और कूल मतलब ठंडी, पेड़ की ठंडी छाया में बैठ जाते हैं। एंड मेड लॉज, और तीनों अपने अपने लिए क्या बनाते हैं? लॉज, नियम और कानून बनाते हैं कि उन्हें कैसे रहना है, क्या करना और क्या नहीं करना है। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, और तब से लेकर द थ्री फ्रेंड्स ड्वेल्ट, DWELT, ड्वेल्ट हैप्पीली टुगेदर इन पीस, और तब से तीनों फ्रेंड्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से खुशी खुशी रहने लगे। एंड नेवर क्वार्रल्ड अमंग देमसेल्व्स, क्वार्रल्ड मतलब फॉट, और इसके बाद उन तीनों ने कभी भी एक दूसरे के साथ फाइटिंग नहीं की। सो द चिल्ड्रन, इन दिस लास्ट पेज, इस लास्ट पेज में व्हाट वी स्टडीड, हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा कि द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड दैट ऑल ऑफ देम मस्ट रूल टुगेदर, उन्होंने ये तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम तीनों ही एक दूसरे पर क्या करेंगे? राज करेंगे।
बाय मेकिंग सिंपल रूल्स फॉर देमसेल्व्स, और अपने अपने लिए क्या बनाएंगे, कुछ डूज बनाएंगे, क्या करना, कुछ डोंट्स बनाएंगे, क्या नहीं करना है। सिंस द पार्टरज वॉज द ओल्डेस्ट, क्योंकि पार्टरज एज में सबसे बड़ा था, ही वॉज टू ओवरसी दैट द रूल्स वर बींग ओबेड, और उसका काम यही था कि जो रूल बनाए गए हैं उनको माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है। दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, और उसके बाद तीनों खुशी खुशी आपस में मिलजुल कर रहने लगे। सो दैट वॉज द स्टोरी, द ओल्डेस्ट इज द वाइजेस्ट। So children, now let us start reading difficult words of the chapter The Oldest is the Wisest. Children, now let us have a look on the difficult words along with their meanings. And the first difficult word is provided. 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 Provided means gave. Next one is QUARRELLING means quarreling. Quarreling means fighting. Next is several. Several means many. Peacefully. Peacefully means harmoniously. HAR MONI, harmonious. US and LY ly, harmoniously. Then remarked. Remarked means observed or mentioned. Excellent. Excellent means brilliant. And wise. Wise means intelligent. Provided, gave, देना. Quarreling, fighting, लड़ाई करना. Provided, gave, देना. Fighting means लड़ाई करना. Several many, कई. Peacefully means harmoniously, मतलब मिलजुल कर शांति से प्रेम से रहना. Remarked, mentioned. Remarked means mentioned, और mentioned का मतलब बताना. Excellent means brilliant, बहुत अच्छा. And wise. Wise means intelligent, समझदार, intelligent. Stretching. Stretching means extending. Infancy. Extend मतलब बढ़ाना. Infancy. Infancy means earliest stage of life. Young. Not young. When someone is when someone is growing as a baby. जब कोई अपने बचपन में होता है और ग्रो कर रहा होता है बेबी के उसमें, तो उसे हम कहते हैं इनफेंसी. जब वो अपनी बेबी के स्टेज में होता है. ओबेड, टू बी फॉलोड. ओबेड टू बी मीन्स टू बी फॉलोड, मानना. dwelt, DWELT, dwelt. Dwelt means lived. And remember. Remember means recall. Now children, let us have a look on the assessment. Let us check ourselves how much we understood. So, and the first question is, which three animals were the best of friends? कौन से 3 एनिमल बेस्ट फ्रेंड्स थे? An elephant, a monkey and a partridge were the best of friends. Now move to the next question. Why were they not friends any longer? अब वो फ्रेंड्स क्यों नहीं थे? Because all of them started quarreling among themselves.
विच कंटिन्यूड फॉर मैनी वीक्स, क्योंकि अब तीनों ने एक दूसरे के साथ क्या करना शुरू कर दिया था, लड़ना शुरू कर दिया था. दैट इज वाई दे वर नॉट फ्रेंड्स नाउ. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज डिसाइडेड टू हेल्प देम बिकम फ्रेंड्स वंस अगेन. दोबारा फ्रेंड्स बनने के लिए तीनों ने क्या डिसाइड किया. दे डिसाइडेड दैट द ओल्डेस्ट अमंग देम शुड रूल ओवर द टू अदर टू. उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी एज में सबसे बड़ा होगा वही बाकी के दो जनों पर रूल करेगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ओल्डेस्ट अमंग द थ्री क्रीचर्स. कि तीनों में से कौन ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा था. हु वॉज द ओल्डेस्ट अमंग द थ्री. Yes, the partridge was the oldest among the three creatures. कि तीतर partridge जो था तीनों में सबसे oldest था. How did the creature prove that he was the oldest. और creature ने कैसे प्रूव किया कि वो ही सबसे बड़ा, एज में सबसे बड़ा है. अब प्रूव किसने किया था, partridge ने. तो इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पार्ट्रिज ने कैसे प्रूव किया कि ही वॉज द ओल्डेस्ट, वो ही एज में सबसे बड़ा है. तो क्या किया, द पार्ट्रिज रिकॉल्ड दैट हिज मदर ब्रॉट सीड्स फ्रॉम द माउंटेन एंड बैनियन ट्री ग्रू फ्रॉम इट. अब पार्ट्रिज ने रिकॉल यानी रिमेंबर किया कि उसकी मदर जो है वो माउंटेन से कुछ सीड्स लाई थी और उन्हीं सीड्स में से ये बैनियन ट्री ग्रो हुआ है, उगा है. He had seen it from a seedling to a full grown tree. और पार्ट्रिज ने ये भी याद किया कि he had seen it, उसने इस बैनियन ट्री को उगते हुए देखा है. फ्रॉम अ सीडलिंग, फ्रॉम अ बेबी प्लांट, जब वो बेबी प्लांट था, बेबी प्लांट से लेकर एक बड़ा पेड़ बन गया तब तक उसने उसको देखा है. दैट इज़ वाई दस ही प्रूव्ड दैट ही वॉज द ओल्डेस्ट. इस तरह उसने साबित किया कि वो सबसे बड़ा है एज में. हाउ डिड द थ्री फ्रेंड्स लिव हैप्पीली टुगेदर इन पीस वंस अगेन. तीनों दोस्त फिर दोबारा प्यार से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे. कैसे रहने लगे तीनों, द थ्री ऑफ, क्योंकि द थ्री ऑफ देम डिसाइडेड, तीनों ने क्या डिसाइड किया कि दैट ऑल ऑफ देम मस्ट रूल टुगेदर बाय मेकिंग सिंपल रूल्स फॉर देमसेल्व्स. कि तीनों ही, कोई किसी के ऊपर राज नहीं करेगा, कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा कि मैं मेरी बात मानो और मेरा कहना मानो. उसके लिए क्या करेंगे, तीनों अपने अपने लिए क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, कुछ नियम बनाएंगे. एंड दे मस्ट फॉलो दोज रूल्स विच वर मेड बाय देमसेल्व्स. और तीनों को अपने ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना होगा, मानना होगा. सिंस द पार्ट्रिज वॉज द ओल्डेस्ट, अब पार्ट्रिज जो है सबसे बड़ा है, तो ही वॉज टू ओवरसी दैट द रूल्स वर बीइंग ओबेड. उसका काम सिर्फ यही है कि बाकियों ने जो अपने अपने लिए रूल्स बनाए हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो उस चीज़ों को, उन बातों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ये काम देखने का था पार्ट्रिज का. दीज थिंग्स मेड देम हैप्पी. और इन चीज़ों ने उन तीनों को फिर से खुशी खुशी रहना सिखाया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट असेसमेंट पार्ट, दैट इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज द फ्रेंड्स वर रियली क्वारलसम. क्वारलसम मीन्स कि क्या तीनों दोस्त जो थे वो हमेशा ही झगड़ा करते थे, झगड़ालू किस्म के थे. नो, दैट इज वाई दिस इज फॉल्स. इसीलिए ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि तीनों आपस में झगड़ा नहीं करते थे. वो तो एक दिन उनका आपस में झगड़ा हो गया, अदरवाइज वो उससे पहले क्या आराम से रह रहे थे, खुशी खुशी रह रहे थे. दे वर हैप्पी आफ्टर बीइंग सेपरेटेड. और अलग, सेपरेटेड मीन्स अलग, और अलग होने के बाद वो खुश रह रहे थे. नो, वो तो अनहैप्पी हो गए थे अलग होने के बाद. दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स. Next is
The elephant was the first one to narrate his story. NARRATE, narrate, narrate मतलब बताना. तो एलिफेंट जो था सबसे पहला था जिसने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की, या मंकी और पार्टरज थे? नो, दैट इज ट्रू. ये ट्रू है क्योंकि यस, एलिफेंट ने सबसे पहले अपनी स्टोरी बतानी शुरू की थी. Move to the next sentence. The partridge was the youngest among the friends. Youngest मतलब सबसे छोटा, और उसका अपोजिट क्या है? ओल्डेस्ट. तो पार्टरज जो है वो तीनों दोस्तों में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट, सबसे ज़्यादा एज में छोटा था. नो, दैट इज wrong. It means that sentence is false. Now move to the last sentence. Ultimately, ULTI, mate, and LYLE, ultimately means आखिर में, at the last. The monkey became the master of the other two creatures. कि लास्ट में मंकी जो है वो मालिक बन गया था? No, that is wrong. Because ultimately the partridge became the master of the other two creatures. कि लास्ट में स्टोरी में क्या डिसाइड हुआ? हु वॉज द ओल्डेस्ट? कौन था सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट? पार्टरज. दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज रोंग. Now move to the next assessment part, that is fill in the blanks. And the first one is the forest in the story was full of. The forest in the story was full of. स्टोरी में फॉरेस्ट जो था वो किससे भरा हुआ था? बैनियन ट्री से भरा हुआ था. वॉज फुल ऑफ banyan tree. And the second is an elephant, a dash, and a partridge were the best friends. Elephant, a, what will come? What we will fill here? Monkey. An elephant, a monkey, and a partridge were the best friends. And move to the last sentence. Age brings. Age कहलाती है अपने साथ wisdom. So we will write down here wisdom. Age brings wisdom. Wisdom means intelligence. Next is dash could step over the banyan tree when he was a little baby. Who could step over the banyan tree? कौन banyan tree के ऊपर चढ़ सकता था? When he was a little baby, वो जब वो एक little baby था. Elephant. So we will write down here an elephant. And the second is dash could eat leaves on the topmost twigs of the tree. कौन ट्री के twigs, अभी जो branches निकल रही थी उनके leaves खा सकता था? Yes, monkey. कौन था वो? Monkey. So the children, an elephant could step over the banyan tree when he was a little baby, and monkey could eat leaves on the topmost twigs of the tree. And this is the activity. I hope you have already done this activity in your notebooks. So children, I hope now you understood the story, the oldest is the wisest. Thank you children.